Vinod Chopra. Thank you guys, thank you so much. Thank you, thank you. Today's Shantanu show, I'm just visiting. हेलो चेक सर कुछ बोलो ना 2-3 लाइन I just want to say कि I'm the music composer of Zero से Restart and 12th Fail and many other films that Vinod has produced and directed. This association goes back to 22 years and thank you. तो दिल्ली दिल्ली का लड़का था, दिल्ली से आया था, इतने बड़े बड़े सपने थे ही नहीं, इस आदमी ने खींच के पर लगा दिए. He just put wings on me and today I fly because of his blessings. This is a very very special film for me, Zero से Restart, because in many ways many of our journeys, हम सब का journey is linked to this film. How when we reach somewhere हम भूल जाते हैं कि हमने क्यों शुरू किया था. I started because I love music, that's it. ये नहीं था कि यार ऑडिटोरियम भरेंगे, हिट गाने होंगे, कितने लाइक्स होंगे. आई कॉलेज में बैठ के ऐसे ही गिटार में ऐसे ही गाने गाते थे. एंड आई थिंक ही रिमाइंडेड मी दैट दिस इज व्हाई वी डू व्हाट वी डू, दैट इनोसेंस. So Zero से Restart is a very very special day for me and thank you all of you for coming here. Thank you so much. You know, just to further say to what Shantanu has said, just to add, there's a little teaser we put out there, which begins with me saying ke, remember that day जब आपने अपना पहला सपना देखा था, तो आपने माँ से क्या कहा था कि मैं बहुत बड़ा स्टार बन जाऊंगा माँ, और मैं इतना बड़ा स्टार बन के गरीबों को तम्बाकू बेचूंगा तो या मैं आईएएस ऑफिसर बन के देश का देश बेच डालूंगा, या मैं डॉक्टर बन के लोगों को गलत दवाइयाँ दे के बहुत पैसे कमाऊंगा माँ. तो माँ कितनी खुश होती है, इमेजिन कीजिए आप, और मारती है एक चांटा उस बच्चे को. तो हम भूल गए हैं कि वो सपना जो हमारा था पहला, वो क्या था. So this film Zero से Restart is actually going back to that zero moment, and I'm kind of moved that Shantanu remembered our first meeting and going back there. So this whole evening is actually dedicated to going back to that zero moment when we told our mother or we told our father or we told our brother or friend or ourselves कि यार मैं बड़ा होके ये बनूंगा. So to chase the dream that we had, it's important not to forget that. Back to him, please. The person who first chased the dreams amongst us, we were all similar age, but hoarding में जब पहली बार मैं आया था, मैं तब I used to do advertising, and I saw a poster of Mission Kashmir, and I saw 3 names: music composer, Shankar, Loy, Ehsan, and I said, oh my God, because I knew them from advertising days. मैंने कहा इनको picture मिल गई यार, ये कमाल है. And I'm so happy and so happy today, after so many years, I have Shankar Mahadevan here, who will actually be part of the celebration of Zero se Restart. Shankar, please come on stage. And I have to recall the first moment when I was looking for a music composer for Mission Kashmir. I wanted new composers and old composers. And I had a song, and that time the HMV company was talking to me, and I said, I want to meet composers. So that song was given to 4 composers, and they were all known, some of them are very well known, and all of them composed it very nicely. But one composition stood in my, when I heard it, and I still remember it, it went, Dhua, 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 hi dhua, dharam, tam, tam, tam. And I said, who are these people? Who is this man? And that was Shankar Mahadevan. That was our first meeting. As usual, so happy to be with you, Vinod, Shantanu. Today is a special day because Zero से Restart actually हम लोगों का तो Zero से Restart ने हम लोग का Zero से start ही हुआ था विनोद चोपड़ा के साथ actually. So I remember as he was saying Mission Kashmir, we got a call from Vinod Chopra. We were so excited, and
all the songs became popular. All the songs of Mission Kashmir, thanks to him and his energy in the studio, and of course Amir ji, who wrote such. We had had some wonderful sessions over there, and that musical passion, that interest in creating those songs, I can never forget, Vinod. So it's beautiful that you have involved me in this Zero Se Restart. I thank you and your entire team, especially Shantanu too, for thinking about me being part of this, a small part of this music, but I think We very don't important. think of you, Shankar. We never forget you. Yeah, how sweet. We cannot forget you, man. just Absolutely. to शंकर बोल नहीं रहा because अपने मुंह से कैसे बोलेगा, but Vinod's brief to me was यार end का line ना has to be a voice of God, so we have the voice of God. इतने सारे गाने हैं, लेकिन उसमें से ये गाना तो हमेशा इतने साल हो गए अब भी सर, व्हेन आई गो ऑन द स्टेज इट इज़ अ फैन रिक्वेस्ट. अगर वो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ये गाना मैंने अपने कॉन्सर्ट में नहीं गाया है. इट हैज़ सच लव from so many years and it'll continue to. That's the kind of music that you have produced with Shantanu Da. Amazing, amazing songs. Thank you so much for having me here. मज़ा आ गया. तू जाने के पहले 4 लाइन और एक विनोद का कोई फिल्म की थी, इतने बड़े तेरे गाने हैं. एक गाना हाँ Chan Chan. That was the song when I first actually met him. Can you believe how I felt when this little girl went on stage and that big star singer had sung it already? Please remember this. That she had sung, and of course, I don't want to say it, my wife will kill me what happens in films. But, I got upset. I said, no. So I got this girl, she comes on that mic and she goes, sing that first 2 lines. Chan Chan. Chanan Chan Chan Chan. मन गाए क्यों सन सन हवा सन 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 लहराए क्यों. Just when she did that chan chan, no, I died. I said, who is this girl? Huh? Yeah. The way I say, died is a very decent way, but yeah, my expression said that, but my words were not the same. But talking I about was words, so shocked. Shankar, she looked so sweet. She came from some गाड़ी में कैसे ऑटो में. I still don't remember. मैं Young तो girl एकदम walking in. सफ़ेद सलवार कमीज मुझे याद भी है, एकदम सफ़ेद ऐसे वाइट चुन्नी, एकदम गुड गर्ल टाइप होके आई थी. And she comes and I am saying, okay, no time, go on the mic straight. So she goes on the mic and my composer was kind of skeptical कि ये विनोद कर क्या रहा है. The moment she sang, chan chan, chanan chan chan chan, मन गाए क्यों. Moment she did that. Yeah. और भी है बहुत, क्या करूँ. I wrote the बोलो lyrics ना, of this. No, that is not bad. Please. इसका ही तो है. बोलो ना, हाँ बोलो ना. बोलो ना. मतलब I have insane number of songs with this man, so I don't know where to start and where to stop. मैं निकलती हूँ अब. Thank you मेरी so much. restart वापस हो ही नहीं रही. एक तो मैंने बता दे रहा हूँ शंकर, शान, अक्षया, विनोद चोपड़ा का जब लैंडमार्क आएगा मैं एज की बात नहीं कर रहा हूँ. We have to do a concert celebrating his film songs. We have to do it. Thank you. We have to do this. I know that landmark Yes. is coming soon, so correct. And I must tell her that her singing, because that was also a zero moment for Vidya Balan. She had never acted before. Correct. That song, the way she sung, helped Vidya act. Absolutely. That's the important thing. She had. You held all of us together in that moment, so thank you so much. Thank you, Shreya. Thank you so much. Entry moment in The Shan's life, कि when he was a kid, he sang for Vidhu Vinod Chopra in Parinda. Can you believe this? That's amazing. A big round of applause for Shan Mukherjee. Guys, let me he was tell. this big. इतना सा था ये लड़का तब. इतना ही था ना? इतना सा था. 17. हाँ. No, I'm saying कि बहुत रेयर है कि ऐसे ही हम लोग सब बैठ के अड्डा मार के गाना कर रहे हैं, एक ही गिटार कुछ नहीं है. I'm just loving this vibe, है ना? See, the important thing is that this is probably the first music launch when there are not many people playing and everything. I wanted it to be like how we are, how we make music. And
to go back to Shan, इतना सा था ये. I still remember. इतना सा ही था ना कि इतना था. जब हम मिले थे तो इतना ही था, I was इतना 12. और ये ऐसा माइक नीचे करके, ऐसा नीचे करके, R.D. Burman of course was there, and I still remember the first one. कितनी है प्यारी प्यारी दोस्ती हमारी, जो यार की खुशी वो खुशी है हमारी. इतना सा था. अब तू गा. मैं तो गा. नहीं रियली एक्चुअली मेरी सागरिका वाज आल्सो देयर, और मुझे जो एक्चुअल ओरिजिनल गाना है उसमें लाइंस मेरे थे ही नहीं, क्योंकि वो आवाज़ मेरी ना इधर की थी ना उधर की थी. लेकिन जब फिल्म की रिलीज़ का वक्त आया तो उनको लगा कि एक उस तरह की ही आवाज़ चाहिए, तो जिन्हें कहना एक एडोलसेंट वॉइस चाहिए. आई थिंक जैकी श्रॉफ का कैरेक्टर, तो उसमें एक लाइन था, वो सब पत्थर उठा के कहता है कि ताकत से डरेगा हर आदमी हमारी. फिर उसके बाद कहना था कि ताकत से नहीं, ताकत नहीं, प्यार से, सादगी से. तो इस तरह का वो, लेकिन उस एक लाइन के लिए आई हैव, ये तो सबके ये लिए याद रखना. मेरे लिए जरूर गाना. ये गाना मैं किसी इस के गाने गाने पे के आ ऊपर सकता है. बैठ के सारी लाइव जिया हूँ साला. हाँ याद रखना, भूलना मत. अभी ये बात मैंने पब्लिक में बोल दी, इसको गाना ही पड़ेगा. तुम लोग गाना यार. I don't know, वही चल रहा है कि ये तो जाने की बात कर रहा है. कि ये तो कि पहले क्या हो जाए. who knows, This but song has been an inspiration for me. I have to tell you guys, the way you composed, the way you sang, this song makes me feel this is how we should lead our lives. Thank you. बिल्कुल 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 बिल्कुल. This is how we should lead our lives. नहीं, इस गाने के साथ मेरा एक बहुत ही पर्सनल स्टोरी भी जुड़ा इसलिए हुआ है क्योंकि दैट सेम ईयर 2010 आई वाज डिटेक्टिव विद नॉड्यूल्स, और आई वाज नॉट सिंगिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. और देन आई स्पोक शांत, मेरे सब लो में है, तेरा हो जाएगा, टेंशन नहीं है. तो आई वाज ओनली मेंट टू सिंग द लोअर पार्ट, एंड उस पर भी डर था क्योंकि वो खराश ऐसा था कि वो कहीं भी आ रहा था. आज भी फिर से वापस आ गया, बट एनीवे, बट वो लो पार्ट हो गया. फिर बोले कि अच्छा देख वो वाला ट्राई करे, तो फिर वो भी कर लिया. अचानक से it was like almost unbelievable for me क्योंकि it was high note. Then I realized that song is composed in such a way that the mid notes where I was having trouble with my throat was not there in the song. या तो लो है या फिर हाई है. फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा और एम्बिशियस हो गया. फिर मैं शांतना को बोल रहा हूँ आलाप भी कर लूँ. अरे भाई कुछ तो मेरे लिए छोड़ डाले, तो सब खींच रहा है. But A big round of that applause for song Shan. brought it Thank you back, so much. and, Thank you, Shan. that's Shan, you great, now that's stay on the stage. Shankar and Shreya, come on stage. And now the master of ceremony becomes Vinod Chopra, because now we're going to talk about the song and launch the song, which is so close to our heart, Zero Se Restart. You have the microphone, right? So first let me just tell you what the song is about. It's just a few lines. I'll narrate the point to you. It says, चल जीरो पे चलते हैं, चल यार खुद से फिर मिलते हैं. चल जीरो पे चलते हैं, चल यार खुद से फिर मिलते हैं. तू हंस के जी या रो के जी, एक उम्र तो तुझको जीना है. जो झूठ के पीछे भागे तू, हर मोड़ पे झूठ को सहना है. जब आज नहीं कल मरना है, किस बात से इतना डरना है. अभी मैंने इसीलिए तेरे को बोला वो बात, कि मैं डरता नहीं हूँ मरने से. जब आज नहीं कल मरना है, किस बात से इतना डरना है. चल खुशियों से मिलते हैं, चल यार वापस जीरो पे चलते हैं. जो नेक्स्ट लाइन है, विच आर वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, ही सेज, चल सच की डगर चलते हैं, चल अपने बचपन से मिलते हैं. चल सच की डगर चलते हैं, भोलेपन से फिर मिलते हैं. मिलजुल के सीटी मारेंगे, यारों को गले लगा लेंगे. और जो बचा खुचा है टिफिन में, मिलजुल कर सारे खा लेंगे. जब आज नहीं कल मरना है, किस बात से इतना डरना है. चल फिर खुशियों से मिलते हैं, चल यार वापस जीरो पे चलते हैं. तो ये जो आज हुआ है, तो वी हैव ऑल एक्चुअली गॉन बैक टू आवर जीरोज, and it's really very emotional for me that this song is now going to be sung by them. But before I go to release the song, I want to introduce a very interesting Zero guy, the kid who actually with me directed and edited this film. Kid called Just Cover Kohli. He should be somewhere. Oh, aata nahi hai. This is the kid who's just come straight from editing room.
He has edited, directed and narrated the film. And there's very interesting anecdote he just told me कि कितनी footage से कितनी film बनी है, ये मैं चाहता हूँ ये आप लोगों को बताए. So this was not a Zero से Restart was not a planned film. उसका कोई बनाने का हमारा intention था नहीं. इसका पहले मैं पूरा introduction कर दूँ. ये जीरो इसका D2D है. ये ड्रोन ऑपरेटर था साला. इसको कुछ नहीं आता था. ड्रोन चलाता था शिकारा में. आता तो था मगर था ड्रोन ऑपरेटर. फिर इसने ड्रोन ऑपरेटर बन के वो थोड़ा एडिट किया. क्या था वो, शिकारा डायरीज. तो बहुत अच्छा एडिट किया. तो इस पिक्चर में मेरे साथ था लिखने एडिट के लिए. तो पहले असिस्टेंट एडिटर था, मैं एडिट कर रहा था. तो अच्छा काम करने लगा शंकर. तो मैं बोला यार असिस्टेंट नहीं, तेरे को एसोसिएट एडिटर बना दूंगा. खुश हो गया. तो एसोसिएट एडिटर हो गया. फिर चलता गया. अच्छा काम कर रहा था. तो मैंने कहा यार तेरे को को एडिटर बनाऊंगा मैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहा था. हो गया एडिटर, को एडिटर बन गया. फिर चलते चलते एक स्टेज आई, आई कुडंट रेजिस्ट. मैंने कहा यार मैंने जिंदगी में नहीं किया है, मैं एडिटिंग क्रेडिट तेरे से शेयर करूंगा. एडिटेड बाय विधु विनोद चोपड़ा एंड जस कंवर कोहली. तो भाई साहब खुश हो गए. और जब तक पिक्चर खत्म हुई क्रेडिट ये है कि एडिटेड बाय जस कंवर कोहली विनोद चोपड़ा. मतलब मैं कंसल्टेंट एडिटर हो गया हूँ. और कंसल्टेंट ये पहली बार मेरी फिल्म में टाइटल होगा एडिटेड एंड डायरेक्टेड बाय जस कंवर कोहली, कंसल्टिंग एडिटर एंड डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा. क्या बात है. तो इस बच्चे ने मेरे को कंसल्टिंग बनाया. नाउ यू स्पीक. Sir, I also have a zero moment with you. COVID का time था and we were all lost. I was also lost and थोड़ा depression वाले state में था. और मैंने सर से request किया था कि सर मतलब मैं घर जा सकता हूँ क्या 4-5 महीने के लिए. I just want to go home. I want to be with family. I'm not feeling very good. And he said, yeah, please go tomorrow. I said, नहीं सर कल नहीं, मतलब I'll go, next month, I'll wrap up some work. बोलते नहीं कल जा. I said, नहीं सर कल नहीं सर, मतलब I'll go soon. तो बोलते ठीक है, अच्छा तो फिर कल नहीं जा रहा तो एक काम कर ये पढ़. And there was a script that sir shared with me. उस टाइम पे एक ready bound script थी called 12th Fail. And I read that and he asked me कि क्या लगता है. मैंने बोला सर it's nice, second half थोड़ा सा better हो सकता है सर, ये थोड़ा मेरे को लगा ऐसा है. तो इसे ठीक है चल, कैसे करेगा ठीक. मैंने बोला सर सोचना पड़ेगा सर, रात को सोचता हूँ. बोलता है चल सुबह बता. तो आई स्पेंड द नाइट थिंकिंग सर एंड आई थॉट आईड कम अप विद सम ग्रेट आइडियाज. तो सुबह में आया सर के पास, मैंने सर को अपने ग्रेट आइडियाज सुनाए और सर बोलते हैं बिल्कुल बकवास. बिल्कुल बकवास. बट इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट यू सजेस्टेड व्हिच इज अ हॉरिबल आइडिया, व्हाट इफ वी डू दिस, डज इट like slightly fix your problem? I said sir slightly it fixes my problem. And the next thing you know, 10 months later, we have broken that script down to its fundamentals and rewritten like an entirely new version. 179 versions of that like that. And from there to just, I'm standing here today, it's quite a journey, sir. It's quite a journey. How wonderful, yeah. How wonderful. I love being consultant now. Did you end up going home at all? No, I haven't gone home ever since. For many years. he तभी hasn't से gone आज home. तक घर गया ही नहीं वो. जब चला जाना चाहिए, अभी तक नहीं गया. जब भी विनोद डज नॉट वांट एनीबॉडी टू गो, उनको स्क्रिप्ट पकड़ लेते कि ये पढ़. ओके, And, yeah. विल नाउ Yeah, please. प्रेजेंट द सॉन्ग. इसको करने के पहले एक इंसान को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ. वो है स्वानंद किरकिरे, who wrote this song and he's a very integral part of our team. Like विनोद, मैं, स्वानंद, we have been, अगर मेरे 22 साल हो गए इनके साथ तो स्वानंद का भी हुआ था. साथ में ही हमने शुरू किया था. तो ये हम गाना गा रहे हैं. एक स्वानंद का एक जीरो मोमेंट हाँ. बोलना पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल. जब पहला गाना बना, दिस यू गाइस डोंट नो, रात हमारी वो गाना था रात हमारी तो चांद की सहेली है, कितने दिनों के बाद कितने दिनों के बाद आई ये अकेली है. उसके बाद के बातें भी, हाँ, संझा के बाती भी कोई बुझा दे आज, अंधेरे से जी भर के करनी है बातें आज. What a song. You can hum this song. थोड़ा वर्ड्स मेरे साथ में. Check. मैं बोलता रहा. मैं जब तक ये प्रॉम्प्ट करने मुझे ये का गाना उसने ये नहीं ये बहुत जरूरी है. वो लिख रहा था, ये हम सब के लिए जरूरी. तो स्वानंद ने ये लिखी लाइनें, तो कुछ लाइनें मैंने चेंज वेंज की, फिर उसने ये गाया, फिर वो कुछ लाइन को सिंप्लीफाई करने लगा. जो संझा की बाती, तू गुनगुना. एक मिनट. संझा के बाती भी
रात हमारी तो चांद चांद की की सहेली है, कितने दिनों के बाद आई वो अकेली है। संझा की बातें भी कोई बुझा दे यार, अंधेरे से जी भर के करनी है बातें यार। अंधेरा रूठा है, अंधेरा ऐठा है, गुमसुम सा कोने में बैठा है। क्या बात। नाउ अच्छा ये गाना वो हमारे टेरेस पे अब स्वानंद बैठ के ऐठा वर्ड चेंज कर रहा है, सांझ वर्ड चेंज कर रहा है, सांझ का को शाम कर रहा है। मैंने कहा क्या कर रहा है? कहता है सर ये किसी को समझ में नहीं आएगा मैं कर रहा हूँ। फिर मैं बोल ही देता हूँ, फिल्मों में भी मैंने बहुत गाली दी। मैंने कहा भोसड़ी गए, तू मेरे टेरेस पे बैठ के इसको ऐसा सिंपलीफाई कर रहा है? तू प्रोड्यूसर है कि मैं प्रोड्यूसर हूं? तो ऐसा देखता है। मैं बोला प्रोड्यूसर कौन है बहनचो, पैसा किसका वेस्ट होगा, तेरा के मेरा? एग्जैक्टली। अच्छा अब स्वानंद रोने लगा। मुझे लगा यार मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। मैंने शांतनु को बोला यार उसको बोल मैं गाली दे देता हूँ, ये सीरियस नहीं है, ऐसे ही बोल दिया उसको, चुप करा। जब ये गया वो रोते रोते मुझे क्या कहता है, और आज पता नहीं कितने साल हो गए हैं, कहता है सर जब से शहर में आया हूँ जहां जाता हूँ लोग कहते हैं ये बिकेगा नहीं, ये बिकेगा नहीं, इसको सिंपल करो, इसको लोगों को बचाओ। आप पहले आदमी हैं सर जो कह रहे हैं कि मत करो, जो मन में है वो करो। एंड ही वाज वीपिंग फॉर दैट। दैट इज आई रिमेंबर दैट। एंड आई विल रिमाइंड यू, एक और चीज़ आपको रिमाइंड करता हूँ कि क्यों ही वॉज दैट डे इमोशनल, कि सर और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस ऑल्टरनेट पाथ में यू आर सक्सेसफुल, क्योंकि अगर सक्सेसफुल नहीं होते तो इट कैन नॉट बिकम एन एग्जाम्पल। ये भी उसने बोला करेक्ट, क्योंकि देखो आज क्या मैं यहाँ सक्सेसफुल खड़ा हूँ ना यार। देखो अभी मैं यही बात कुर्ता पहन के, फटा हुआ पजामा पहन के, जो बीच में आपको बोलता यार ऑनेस्ट रहो, बुराई के रास्ते पे मत चलो, गंदी फिल्में मत बनाओ यार, तो तुम तो सोते पागल है, इसको बेवड़े को दारू दे छोड़ दो। नहीं बहुत जरूरी है यार। सी वो तो फिर उसको रिजेक्ट ही करेंगे बेचारा यार, ये गलत रास्ते पे चल गया, सच्चाई के रास्ते पे चला, बर्बाद हो गया। तो मेरी बात सुनने के लिए जरूरी है कि आप देखें कि हम सक्सेसफुल हैं। बहुत अच्छे कपड़े पहन के आए देखो। तो हम सक्सेसफुल लोग आपको बोल रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज मत करो, सही रास्ते पे चलो, और तो मतलब सही हो गया ना। सॉरी अभी ये थोड़ा डाइवर्जन हो गया, बट इट वाज इम्पोर्टेंट। तो अभी मैं क्विकली गाना कर देता हूँ बिफोर इट गेट्स डाइवर्टेड मोर। ये गाना शुरू हो रहा है विद स्वानंद्स वॉइस, वो जब भी है नहीं, बट जस्ट टू कीप हिज प्रेजेंस। बट बाकी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम ये सब लाइव गा रहे हैं। आजकल पता नहीं चलता क्या +1 है, -1 है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, बट दीज आर द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स ऑफ, वी डू अ +1 विद देम। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट। क्या सबको गाना अच्छा लगा? सो गाइस अब सुनने में मार्केटिंग लगेगा, पर थोड़ा सा मार्केटिंग भी है। लव, शेयर, ओके, एंड लिसन टू दिस सॉन्ग। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम प्रेजेंट कर रहे हैं, इसके ऐसे शब्द या ऐसे थॉट आजकल होते नहीं यार। अब बोल रहे जीरो से रीस्टार्ट, यार हम सबके जिंदगी में जरा जीरो से रीस्टार्ट मोमेंट है। जस्ट अपने लिए सुनो, उतना ही काफी हम ले रही। थैंक यू सो मच। लास्ट वर्ड मैं बोलूंगा। अच्छा लगता है तो सुनो, नहीं तो भाड़ में जाने दो। Check. Guys, please be seated because now we're going to watch the video on the big screen. So please be seated, everyone. Yeah, are you guys excited?
Okay, thank you. Please be seated. We'll just show you all the video and then we'll interact with the artist as well. So please be seated. Thank you, everyone. Tanu sir doing so well. Sir, कैसा लगा ये atmosphere आपको? बहुत बुरा लगा अच्छा ही लगा होगा यार इसका क्या जवाब दूं अरे बाप रे अरे बाद में करो अरे रहने दो पकड़ के रखो सवाल क्या है सवाल कैसा लगा तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के ऐ मेरी जाने वफा तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है साथ तेरे रहेंगे सदा तुमसे न होंगे जुदा कौन सा है? तुमसे दिस इज आर.डी. बर्मन यार आर.डी. बर्मन इन परिंदा तो Okay, so इतना I'll pick अच्छा up the लगा कि first- हमने गाना ही गा दिया आज सारे सवालों के जवाब गानों में ही होंगे So we've handpicked a few questions. So this is for all the singers. Can you elaborate what influenced you for this song's composition? कंपोजिशन तो ये कॉम्पोजिशन तो उन्होंने बनाया. आप बता दीजिए. Influence is the story of Zero Se Restart. Influence is this man. Influence is 12th Fail, the film that I saw. And influence is our lives. I'll be honest with you, I miss spending time with Shan, Shreya, Shankar when we were starting off. अभी हम सब बहुत busy हो गए हैं. हमको कभी कभी सिर्फ एयरपोर्ट्स में मिलते हैं स्टेज में मिलते हैं वेरी रेयरली वी मीट इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग टुडे आई थिंक ये इंस्पिरेशन इस धुन का इसी से कि यार काश ऐसा दिन वापस होता कि हम जब बैठ के अड्डा मारते थे वैसा हो जाए यार सच्ची यार मतलब आज का जो एनर्जी था ना बहुत दिल खुश हो गया मजा आ गया और बहुत साल बाद आई थिंक फर्स्ट टाइम एवर इस तरह से हम लोग एक्चुअली लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे थे सब साथ में माइक के पीछे जो पहले लोग सुनते हैं सिर्फ कि ऐसा हुआ करता था एक वक्त में सो इट वाज नाइस दैट वो भी एक जीरो से रीस्टार्ट हुआ सब मिलकर गा रहे थे इट वाज अ लॉट ऑफ फन Absolutely. Next question is for Vidu sir. How did you ensure that the song feels personal to the audience while staying true to the film's story? See, first and foremost, I never think that song should feel personal to the audience. I feel it should feel personal to me. If it's good for me, then it's good for everyone. I have never made a film or a song thinking, audience will love it. Whose audience? I'm also audience, no. One audience तो मैं हूँ ना यार सबसे important तो हम ही audience है हमको ही अच्छा नहीं लगा तो फायदा क्या फिर भाड़ में जाओ तो मैं अपने ही सोच के लिखता हूँ या कंपोज करता हूँ We'll take last 2 questions only. Again, this is for Vidu sir. What do you hope people should take away from this song? You know, actually, I'm telling you, I'm just hoping that they'll have fun. They should just enjoy themselves, and if they really have fun, they will take something home. If they get bored in my movie, nothing will happen. If they get bored in the song, nothing will happen. I think आज हमने देख लिया कि सबने कितना enjoy किया है. So give it up everyone for yourselves and for the entire team. We'll take one last final one. Okay, this is for the singers. While recording, did it make you think of your own zero moment starting over? Absolutely. मतलब what we narrated here was exactly what हम लोगों ने जब रिकॉर्ड किया तो विदु सर भी थे और हमारा एक जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे अपना जो मोमेंट था मेरा मिशन कश्मीर मोमेंट आई एम श्योर दैट शान तुमने भी जो परिंदा का मोमेंट है मेरा तो ये भी जीरो मोमेंट हो गया feels like another new restart it's been so long since I've been part of big songs so लेकिन इस आदमी को मैं मतलब 25 साल पहले से जानता हूँ जब मिशन कश्मीर हमने साथ में किया था तभी से लेके आज तक एक इतना इंच भी बदला नहीं हुआ ऐसा का वैसा है physically भी ऐसे ही है Amazing. I Thank think you very give much it- guys thank you Give it up for the entire guys. team. Thank you so much. Thank you everyone. Guys, zero से restart in cinemas. Photo.
Thank you so much. Thank you. Thank you guys. Zero Se Restart will be in cinemas on 13 December. Do watch it, and any videos that you all have taken, you all can push it up on your Instagram stories, tag T-Series Official, Vidhu Vinod Chopra Films, use hashtag Zero Se Restart, and we'll see you. Thank you so much.